بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کا یہ پیپر جو 2018 کو ہوا تھا، 13/4/2018 کو، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے سورۃ الفصلات کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ البقرہ۔ دوسرا سوال ہے تحویل قبلہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ النساء۔ صلاۃ الخوف، خوف اور جنگ کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ذکر سورۃ النساء میں ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس غزوہ کے موقع پر، تو اس کا جواب ہے غزوہ ذات الرقاع۔ اس غزوہ کے موقع پر مسلمانوں نے پہلی مرتبہ نماز خوف پڑھی ہے 4 ہجری کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا؟ تو جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ خطیب الانبیاء جو ہے یہ بھی آپ کا لقب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور آپ کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی عمر کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ العنکبوت۔ اور اس صورت میں یہ بھی ہے کہ گھروں میں سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہے، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ مال فے، وہ مال جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے دشمن کا، اس کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الحشر میں ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو اس کا ذکر سورۃ انفال میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ احزاب میں ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فیض ہیں، خلق عظیم رسول اللہ کے اخلاق کا ذکر سورۃ القلم میں ہے۔ لفظ محمد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو جواب ہے 4 مرتبہ۔ لفظ احمد قرآن کی کس صورت میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورۃ الصف، جو 28ویں پارے کی ایک صورت ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ یہاں درست جواب 138 بنے گا، ویسے اس کا درست جواب 136 ہے۔ ذو النور یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اگر ذو النورین ہوتا تو پھر یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہوتا۔ سورۃ الشمس کے شروع میں کتنی قسمیں اٹھائی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 9 قسمیں اٹھائی گئی ہیں۔ سورۃ القدر اس کی آیات کتنی ہیں؟ تو اس کی جو آیات ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ تو ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ ابو لہب شعلوں والا۔ بد دعا سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ تینوں صورتیں جو ہیں آخری پارے میں ہیں، ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور پھر ہے سورۃ تبت یدا ابی لہب۔ کس سپارے کی تمام صورتیں مدنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 28۔ قرآن مجید میں کس ظلم کو ظلم عظیم قرار دیا گیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان کی آیت ہے۔ قرآن مجید کے اسلوب بدیع کی اصطلاح ہے، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی جو کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کتاب کا جو باب نمبر 3 ہے، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے اسلوب بدیع، ایک دلکش اسلوب، ایک انوکھے اسلوب کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی تھے، محدث، مفسر، فقیہ یا صوفی؟ تو درست جواب ہے مفسر، کیونکہ سب سے زیادہ تفسیری روایات جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہیں، اور اس وجہ سے بھی آپ مفسر ہیں کہ آپ کا لقب تھا ترجمان القرآن۔ ذو الشہادتین کس صحابی کا لقب تھا؟ تو جواب ہے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ تو یہ فرض ہے۔
फ़र्ज़ियत का ज़िक्र सूरतुल बक़रा में है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। 100 बकरियों पर ज़कात होती है, तो जवाब है 1। 40 से लेकर 120 बकरियों पर 1 है। जब 121 हो जाए तो फिर जो है 2 बकरियां ज़कात में दी जाएंगी। किताबुल अम्वाल ये मुआशियात के मौजू पर किताब है। इसके मुसन्निफ़ हैं अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम। इब्न खुल्दून का असल नाम है अब्दुर्रहमान। ये बहुत बड़े फ़लसफ़ी मुअर्रिख़ बल्कि इल्म इमरानियात के बानी भी कहलाते हैं, फ़लसफ़ा तारीख़ के बानी भी कहलाते हैं, और इनकी वफ़ात जो है वो 808 हिजरी है। इमाम अबू यूसुफ़ का असल नाम याक़ूब है, और नौमान जो है ये इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम है। बहरहाल आपका असल नाम याक़ूब है। रबिया राय इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। राक़बा मुमिना मिसाल है मुक़य्यद की। मुतलक और मुक़य्यद ये उसूल फ़िक़्ह की इस्तिलाहात हैं। जो लफ्ज़ या जो ज़ात के साथ साथ किसी क़ैद, शर्त या सिफत को बतलाए तो इसको कहते हैं मुक़य्यद। देखें, राक़बा ये मुतलक है, गर्दन, मुराद इससे ज़ात कोई भी ग़ुलाम, और मोमिना यानी मोमिन ग़ुलाम, तो मुतलक को इसने मुक़य्यद कर दिया। रसूलुल्लाह अरबी ग्रामर के लिहाज से क्या है, तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है। रसूल मुज़ाफ़ है और लफ्ज़ अल्लाह, इसमें अल्लाह जो है मुज़ाफ़ इलैह है। अल्लाह का रसूल, इसका एक फ़ार्मूला या पहचान ये भी है, का, के, को या की वग़ैरह जो हैं ये मुरक्कब इज़ाफ़ी में आते हैं। जैसे रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। क़ाला यक़ूलु हफ्त अक़साम के लिहाज से क्या है, अजवफ़ है। अजवफ़ कहते हैं जिसके ऐन कलमा की जगह हरफ इल्लत हो। क़ाला जो है ये असल में था क़ावाला, तो क़ावाला फ़ाआला के वज़न पर है, तो ये वाव जो ऐन कलमा की जगह पे है यहाँ पे हरफ इल्लत है। कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, ये किसकी मिसाल है, तो ये मफ़ऊल मुतलक की मिसाल है। मफ़ऊल मुतलक जो है उस मसदर को कहते हैं जो अपने हम माना फ़ेल के बाद वाक़े हो। तो कल्लमा फ़ेल है और उसी फ़ेल से तकलीमन मसदर है और फ़ेल के बाद है, तो इसको कहा जाएगा मफ़ऊल मुतलक। जैसे किसी और जगह पे, जैसे कुरान में है दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, तो ये दक्कन दक्का जो है ये मफ़ऊल मुतलक है, क्योंकि दुक्कत फ़ेल के बाद है। पाकिस्तान में ज़कात व उशर ऑर्डिनेंस का ऐलान कब हुआ, तो ये ज़ियाउल हक़ के दौर में 20 जून 1980 को। जिस हदीस की सनद से 2 मुसलसल रावी हज़फ हों उसको मुअज़ल कहते हैं। जो मुरसल हदीस है, इन चारों को हम देख लेते हैं। मुरसल हदीस में ये होता है कि सहाबी का ज़िक्र नहीं होता, ताबई और ताबी के बाद बराह रास्त रसूलुल्लाह, दरमियान में सहाबी का ज़िक्र नहीं होता। और मुत्तसिल वो है जिसकी सनद में इनक़िता न हो। मरफ़ू वो है जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ हो, जबकि मौज़ल जिसके दरमियान से 2 रावी मुसलसल महज़ूफ़ हो। अगला जो सवाल है वो है सही लिज़ात ही की शराइत की तादाद कितनी है, तो उसकी शराइत की तादाद जो है 5 है कि तमाम रावी जो हैं, नंबर 1 आदिल, और दूसरे नंबर पर है ज़ाबित, और तीसरे नंबर पर है मुत्तसिल हो सनद, और फिर है इल्लत ना हो, और आखिरी शर्त ये है शुज़ूज़ ना हो। ये 5 शराइत हैं, जिनमें से ये 3 हों, यानी कि तमाम रावी आदिल हों,
ज़ाबित हूँ, सनद मुत्तसिल हो, ये दो ना हो, इल्लत ना हो, शुजूज़ ना हो। सिका रावी औसक रावी की मुखालफत करे तो इसको कहते हैं शाज़। इसको आप समझें, यह है सिका, काबिल एतमाद। गोया कि आप यूँ समझें इसके नंबर हैं 2 और औसक इसके नंबर हैं 3। अब ये 2 नंबर जिस रावी के हैं वो 3 नंबर वाले की मुखालफत करे तो इसको कहेंगे शाज़। और अगर ये 3 जिसके नंबर हैं ये इसकी मुखालफत करे तो इस शाज़ के जो बिलमुकाबिल रिवायत होगी उसको कहेंगे महफूज। यहाँ इसको हम एक और तरीके से समझना चाहें, यानी अगर ज़ईफ़ सिका रावी की मुखालफत करे, मसलन जहाँ पे हम इसको दे देते हैं सिफर नंबर कि इसका कोई नंबर नहीं है, ये ज़ईफ़ है। अब ये सिफर नंबर हो के 3 नंबर वाले की मुखालफत करे या सिफर नंबर हो के 2 नंबर जिसके हों उसकी मुखालफत करे तो उसकी रिवायत को हम मुनकर कहेंगे। सहीफ़ा सादिका के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो ये अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आपका ये सहीफ़ा है। अगर सहीफ़ा सहीहा हो तो फिर इसके मुसन्निफ़ जो हैं या राइटर जो हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल जामे ये हदीस की किताब है, 2री सदी हिजरी में लिखी गई, इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह इसके रावी हैं। सहीफ़ा अबी हुरैरा में अहादीस की तादाद 138 थी। यूँ भी पूछा जा सकता है कहाँ से दरियाफ़्त हुआ, तो ये बर्लन और दिमश्क से डॉक्टर हमीदुल्लाह को इसके 2 मखतूते मिले हैं। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कौन हैं? अब ये इनमें से इमाम मुस्लिम भी बन सकते हैं, इमाम बुखारी भी। अब हमने ऐसी जगह पे ये फ़ैसला करना होता है ज़्यादा दुरुस्त कौन सा है, तो वो ज़्यादा दुरुस्त जो है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, आप अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं। इमाम औज़ाई का ताल्लुक़ कहाँ से था? आपका ताल्लुक़ शाम से था, आपको इमाम अहले शाम भी कहा जाता है, इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह को। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम क्या था? मोहम्मद, पूरा नाम है अबू ईसा, ये कुनियत है, और नाम है मोहम्मद, वालिद का नाम भी ईसा है। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 45 के मिना से हाजियों की वापसी, ये वापसी के दिन को क्या कहा जाता है? तो ये है यौमुन नफ़र। यौमुल बीज़ जो ऑप्शन 1 है, इनको अय्याम बीज़ भी कहा जाता है। ये हर महीने के जो 3 दिन होते हैं जिनमें रोज़ा रखना मुस्तहब है, 13, 14, 15। और यौम अस्वद ये तो वैसे एक ऑप्शन दे दिया उन्होंने। जो यौमुन नहर है ये 10 ज़िलहज्जा है। यहाँ 10 ज़िलहज्जा को हाजी जो हैं मिना में मौजूद होते हैं, कुर्बानी करते हैं। जबकि नफ़र का माना है कूच करना, तो कूच करना ये यौमुन नफ़र का दिन मिना से हाजियों की वापसी का दिन है। ज़ैद किसकी मिसाल है? ये तख़सीस फ़र्द की मिसाल है। ये ख़ास की किस्म है उसूल फ़िक़्ह में। और तख़सीस फ़र्द यानी लोगों के जो नाम हैं जैसे ज़ैद, अमर, बकर वग़ैरह। फ़िक़्ह का पहला बुनियादी माख़ज़ कौन सा है? तो फ़िक़्ह का पहला बुनियादी माख़ज़ जो है वो कुरान मजीद है। क़ियास के अरकान की तादाद कितनी है? इसका जवाब है 4, जिनमें से एक है असल। ये पहला रुकन है, यानी वो मसला जिसका हुक्म किताब व सुन्नत में मौजूद है। इस असल को जो है मक़ीस अलैह भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर है फ़रा, इसको मक़ीस भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे अरकान में से तीसरा रुकन जो है वो इल्लत है। और चौथा रुकन हुक्म, यानी जो हुक्म मक़ीस अलैह का है वही हुक्म मक़ीस का कर देना। ये क़ियास के 4 अरकान हैं। सवाल नंबर 49 है, मसालिह मुरसला किस फ़िक़ही मसलक की इस्तिलाह है? इमाम मालिक फ़िक़्ह मालिकी
یہ मसालिह मुरसला इनकी इस्तिलाह है। सवाल नंबर 50 है, इमाम आज़म किसका लक़ब है? तो ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है। आपकी पैदाइश 80 हिजरी है और आपकी वफ़ात जो है 150 हिजरी है। ये पेपर के 50 सवालात थे और कुल अगर हम देखें तो तकरीबन 70 से 80 के करीब सवालात हमने हल किए हैं। इंशाअल्लाह कल हम जो अगले 50 सवालात हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।